Good morning, children. Hello, everyone. Children, like I started with active and passive voice in the class, but we have to carry on through online classes. We have to finish our course before the boards. So, kindly follow all the videos that I'm sending. I'll be explaining through videos and then we'll follow some exercises. जो exercises होंगे ये इसी पे based है. So today I'm starting with active passive. Now, what do we mean by active and passive voice? Voice is that form of the verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. Like when I say, I'm taking an example of a boy, Mayank, of 10th A. Now, Mayank flies kites. So, what is the subject here? Mayank is the subject. Here, kites is the object and flies is the verb, first form of the verb. Okay. So, how to identify which voice is it? ये active voice है कि passive voice है? So, basically what we do, it is showing whether it is denoted by the subject does something or has something done to it. So, this is the subject who is the doer of the action. Okay. And this is the object, that means whatever Mayank is doing. So the repercussion of this verb, the influence of this verb is borne by the kites. इसका जो वर्ब है, वर्ब का असर किस पे हो रहा है ना, काइट्स पे हो रहा है. मयंक flies kites. Okay, so this is an active voice. The quality of the verb denotes whether its subject acts or is acted upon. हमें समझ में आता है वर्ब से. हमें ये तय करना है कि जो सब्जेक्ट है क्या काम सब्जेक्ट द्वारा हो रहा है. और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जैसे काइट्स है, काइट्स ऑब्जेक्ट है, इस पर काम हुआ है. ठीक है, जब हम द्वारा यूज करते हैं ना तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है. नाउ वी कम टू द जनरल रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वॉइस. जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव नो ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी changed into passive voice, and not the intransitive. Intransitive verbs have no objects, therefore only transitive verbs can be changed into passive voice. हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और ऑब्जेक्ट किसमें होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में. तो अच्छा, इतने डिटेल में मत जाओ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में मत जाओ. हमें बस ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं. अगर ऑब्जेक्ट है तो ये एक्टिव पैसिव बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा. एंड द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज व्हेन चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. अच्छा, बेसिकली जो इसका चार्ट है ना, मैंने सेंड किया है. ओके, सो प्लीज फॉलो दैट. मैं एक बार चार्ट यहां भी बना के आपको बता दे रही हूं. प्रेजेंट, past and future. So the base form of the verb comes under indefinite tense. Okay, present indefinite. Let's take the example, the simple example
Mayank flies kites. Okay, this is the subject, this is the object, and this is V1. So what we have to keep in mind is we have to start the sentence with O, object should come first, plus is, am, are plus V3. And just keep one thing in mind, the passive voice will always carry the third form of the verb and nothing else. Object is, am, are, V3 plus subject. So if you follow the formula, it will come like this. Kites. Now Mayank is singular. Okay. Therefore I say flies. But kites, here it is plural. So क्या is होगा, ना am होगा, ना are होगा? are होगा, है ना? तो kites are, V3 क्या होगा flies का? fly, flew, flown. तो V3 क्या है? flown. Kites are flown by Mayank. Children, focus on this. Fine. Now I come to the past tense. Past में क्या होगा? V1 है, ये V2 हो जाएगा. Mayank flew kites. Okay. Though the same formula applies, only O, V, O is, am, are. First, let me tell you what this is. Subject. This is V2. This is O. So we start with object plus is, am, are तो नहीं होगा क्योंकि ये past tense है. So it will be was, were plus as always V3 plus the subject. So the example will go like this. Object is this word, kites. So kites के साथ was लगेगा कि were लग जाएगा. So हम basically हम options दे रहे हैं, oblique लगा रहे हैं, इसलिए kites were V3 क्या होगा? flown by Mayank. शॉर्ट फॉर्म लिखते बेटा, जगह नहीं है. फ्यूचर में है Mayank will fly kites. और इसमें क्या होगा? O प्लस will shall प्लस फिर से V1. देखो ये V1 है, ये V2 है और ये फिर से V1 है, लेकिन इसको तय कौन कर रहा है? will और shall कर रहा है. ठीक है, will या फिर shall. So Mayank will fly प्लस Mayank हम पहले से ही ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं. हाँ, Mayank is subject. Will fly kites. Object. जगह नहीं है यहाँ शायद. Now I come down. I'll start with object. Will shall क्योंकि है तो हमें लगाना ही है. फिर एक्स्ट्रा लग रहा है be, फिर V3, फिर subject. So kites will be flown by Mayank. आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वैसे मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, बट ये क्योंकि क्लासरूम टीचिंग है तो यू विल रिमेंबर दिस बेटर. नाउ आई कम टू कंटिन्यूअस टेंस. ये सब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यानी कि हम अब तक क्या पढ़े हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि मयंक का वो हैबिट है और मयंक उड़ाता है. बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्पीक्स ऑफ समथिंग दैट इज गोइंग ऑन अभी. तो मयंक जो अभी हो रहा है या हो रहा था,
इसमें हम आईएनजी लगाते हैं। मयंक इज फ्लाइंग काइट्स। तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, एस प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस ये हम चाहे V1 ING लिखे या फिर V4 लिखे सीधे सीधे। ये सॉरी, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब पैसिव का फॉर्मूला लिखते हैं हम, सीधे ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस काइट्स, क्योंकि इजामार है तो हम यहां से इजामार नहीं हटाएंगे। एक चीज ध्यान रखो, जब हम इंक की बात करते हैं पैसिव में हमेशा बीइंग लगेगा, ऐसे हम याद रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस बीइंग प्लस V3 तो लगना ही है, फिर बाय भी लगना है, फिर सब्जेक्ट भी लगना है। ओके, तो अब हम लिखते हैं काइट्स। काइट्स में क्या लगाएंगे, आर, है ना, फिर बीइंग फ्लोन बाय मयंक। ये दिखने में डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना एक्सरसाइजेस, कीपिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। मयंक, अब ये इज है तो ये वॉज होगा, वॉज फ्लाइंग काइट्स। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लेट मी डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। इसका क्या होगा, काइट्स, इसमें ऑप्शन क्या होगा, वॉज और वर दोनों है ना, और बीइंग भी लगेगा, तो काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय मयंक। फ्यूचर क्या है, मयंक इज फ्लाइंग काइट्स, मयंक वॉज फ्लाइंग काइट्स, मयंक will be flying kites। अब इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव हम कोशिश करते हैं, फ्लाई काइट्स, काइट्स विल बी फ्लोन ना। देखो काइट्स विल बी फ्लोन क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तो आप जैसे भी कोशिश करें, इसमें आप you cannot form passive voice of future continuous, so please remember इसमें होता ही नहीं है, ठीक है ना। Now I come to perfect tense। So perfect tense की खासियत क्या है, has और have इसे डायरेक्ट करेगा, ठीक है। So मयंक has, और has कब क्या बताता है कि कार्य शुरू हो चुका था और अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है। सो मयंक हैज, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, फ्लोन काइट्स। अब देखो इसमें आप पैसिव में थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा, हैज है तो हम ऑप्शन हैज हैव दोनों का देंगे। इसमें अपनी एक खासियत क्या हो जाएगा, बीइंग। तो ये सब्जेक्ट है, ये सपोर्टिंग वर्ब है हैज, ये V3 ये ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, काइट्स, और क्योंकि हैज है तो हैज हैव हमें दोनों का ही प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन देना है, बिकॉज मयंक तो एक वचन सिंगुलर है बट काइट्स बहुवचन प्लूरल है। तो काइट्स हैव, और अपनी खासियत इसकी क्या है, बीन, थर्ड फॉर्म वही रहेगा क्योंकि हर में ही वही लग रहा है, फ्लोन बाय मयंक, ठीक है। नाउ पास्ट टेंस, मयंक हैड फ्लोन काइट्स। काइट्स, अब हैड का सिर्फ और सिर्फ ही एक ही ऑप्शन आएगा, हैड। अपनी इसकी जो खासियत है, बीन, थर्ड फॉर्म बाय मयंक। गॉट इट? Now future perfect, as the name suggests, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मयंक के साथ
हैज लगाएंगे. मयंक हैज फ्लोन काइट्स, मयंक हैड फ्लोन काइट्स. मयंक के साथ अब क्योंकि फ्यूचर है बोल के हमें कुछ ना कुछ तो लगाना है, तो मयंक विल या फिर शैल, डिपेंड करेगा. आई के साथ हम शैल लगाएंगे और मयंक के साथ हम विल लगाएंगे. ठीक है. ओके. नाउ मयंक विल, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो विल लगा रहे हैं. अब क्योंकि परफेक्ट है तो हैव लगाएंगे. मयंक विल हैव, थर्ड फॉर्म वैसे ही लग रहा है, फ्लोन काइट्स. मयंक हैज फ्लोन काइट्स, मयंक had flown kites, Mayank will have flown kites. Now the passive of this is kites. Will shall दोनों का ही ऑप्शन रखेंगे, तो इसमें हम वैसे will ही लगेगा. kites will have है तो will have वापस आएगा इसमें, जैसे इसमें नहीं आ रहा था. इसमें देखो कुछ भी चेंज नहीं है. हैज और हैव में ही थोड़ा चेंज है क्योंकि सिंगुलर प्लूरल की बात है. हैड में कोई चेंज नहीं है, हमें सिर्फ बीन लगाया बीच में. और काइट्स विल हैव जो यहां है वो वही आया. विल हैव बीच में हम बीन लगाएंगे जो इसकी खासियत है. फ्लोन बाय मयंक. अच्छा, ये एग्जाम्पल हम कहां लगाते हैं? मयंक विल हैव फ्लोन काइट्स, काइट्स विल हैव बीन फ्लोन बाय मयंक. ये है फ्यूचर परफेक्ट. हाँ, ये कब आता है? जैसे देखो विल भी लगा रहे यानी कि होने वाला है, और थर्ड फॉर्म लगा रहे वर्ब का फ्लोन यानी कि हो चुका है. तो ये कहाँ संभव है? देखो कैसे संभव है. आने वाले संडे, जैसे टुडे इज वॉट एवर, थर्सडे फ्राइडे जो भी है, मैम व्हेन आर यू कमिंग? मैम आई एम कमिंग ऑन सैटरडे. सो हम बोलेंगे अरे तुम सैटरडे को आ रहे हो, तो तुम जब तक आओगे शो खत्म हो चुका होगा. यानी कि तुम भी नहीं आए, शो भी अभी तक नहीं शुरू हुआ. बट लेकिन जब तक तुम पहुंचोगे, जो कि हम विल से यहां कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक जो एक और कार्य हो रहा था वो खत्म हो चुका होगा. ओके. नाउ द फोर्थ वन इज परफेक्ट continuous. As the name suggests, this is a combination of perfect and continuous, the example of which will be Mayank has been flying kites. इसमें since और for लगता है, तभी ये सेंटेंस बनते हैं. यानी कि मयंक सुबह से पतंग उड़ाया जा रहा है, तो बोल सकते मयंक हैज बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, या फिर मयंक हैज बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 hours. मयंक हैड बीन फ्लाइंग काइट्स. ये हैड हो गया, और इसमें क्या होगा? मयंक विल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स. और इसका पैसिव नहीं होता, इसका पैसिव नहीं होता, और इसका भी पैसिव आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे. अच्छा बच्चों, इसमें और इसमें क्या देखो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. ये हैव है, हैव हैज है, ये भी हैज हैव है, ये भी बीन है, ये भी बीन है, जबकि ये पैसिव और ये यहाँ का एक्टिव है. फर्क क्या है? बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ बीन के बाद फोर्थ फॉर्म आया. ठीक है ना? ये ऐसे याद करो. सो ये चार्ट हमने वैसे पीडीएफ के फॉर्मेट में भेजा है. फॉलो दैट ऑल्सो, बिकॉज उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से है. नाउ आई एम सेंडिंग सम एक्सरसाइजेस फॉर यू टू फॉलो. ठीक है? तो कुछ एक्सरसाइज है, जैसे चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें एक्टिव पैसिव दोनों मिले हुए हैं बेटा. आप इन एक्सरसाइजेस को सामने चार्ट रख के करिए. अब देखिए कहीं ना कहीं ये फिट होगा. सॉल्व दैट वे.
फिर आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे सो दैट यू कैन टैली। कुछ भी क्वेरी है आप स्कूल के ग्रुप में यू विल पुट अप योर क्वेरी एंड योर क्वेरी विल बी आंसर्ड। ठीक है, लेकिन अपना नाम मेंशन करके तब क्वेरी करना, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसमें क्लास में आई कैन refer to that name. Thank you children. Take care.